नमस्कार, प्रभात खबर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। हम आपको बता दें कि केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए केरल के मतदाताओं का आभार जताया है। वैसे स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे अभी भी यही दर्शा रहे हैं कि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को राज्य के विभिन्न इलाकों में मिली बढ़त ने राज्य की राजनीति को त्रिकोणीय बना दिया है। राज्य में बीजेपी के मत प्रतिशत और सीटों में वृद्धि से खुश केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विश्वास जताया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए चमत्कार करके दिखाएगा। Historical victory. It's a historical day, not just for the people of Trivandrum and the Karyakartas of Trivandrum, but for every Karyakarta of BJP NDA across the state, because we have made very, very significant strides in our vote share, in our political footprint, in across the state, in many, many local bodies. We are today in hardcore areas of the LDF and the UDF. BJP and the NDA have made gains. And that those gains are not short-term gains; those are permanent gains. And I think this will stand in good stead for the coming assembly election, because this assembly election, this local body election, has certainly established one thing: that the left is out of the picture. That the LDF is something that the BJP, the people of Kerala don't want anymore. It is a certain clear message, and that now the option is between the NDA and the UDF in the coming assembly election. Look, I have a simple rule of not responding to Congress on anything, because whatever they say usually is nonsense. This is a fight. We had a fight. We were the first ones and the ones consistently to attack the LDA for their corruption and for their malgovernance. The Congress is the one who was in the India alliance in 27 states and 8 union territories with the CPM. So the Congress should not try and mislead the people of Kerala into believing something other than the truth. That if any party today is doing any cross-voting with anybody, it is the Congress with the CPM. And if you want an example of that, go take a look at Kodungalur results, where Congress, which used to get 200, 300 votes per booth, have been reduced to 25 votes per booth, because they have transferred the entire votes to the LDF. So the Congress better not open their mouth, because a lot of embarrassing truths will come out otherwise. I am happy for the CPM to mock me. I'm happy for the Congress to mock me. As long as the people of Kerala support me, if the people of Kerala welcome our politics, that is all we want. We don't want any endorsement from corrupt twins like the Congress on the left. Certainly, that is not something I will, even if they endorse me, is not something that I will be very happy about. It is not a victory for me. Let me just tell you one thing. This is a party that has tremendously hardworking, committed, sincere cadre and karyakartas who have all worked for the last 6 months very, very diligently, very sincerely with this vision of Prime Minister of Vikasita Kerala. I am just one karyakarta amongst many, many karyakartas, and this is a collective victory and a result of the collective hard work of both leaders and karyakartas of this party. And I must say, I am very, very proud to be a part of this party. Why don't you also invite him? I'll also invite him. हम आपको बता दें कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया है और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को कई पारंपरिक गढ़ों में नुकसान उठाना पड़ा है। इन चुनावों को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक थर्मामीटर के रूप में देखा जा रहा था। नतीजों से साफ है कि सत्ता विरोधी माहौल और शहरी मतदाताओं की बदली प्राथमिकताओं ने एलडीएफ की पकड़ को कमजोर किया है। विपक्षी यूडीएफ ने 6 में से 4 नगर निगमों में जीत हासिल की और 2020 में जिन शहरी क्षेत्रों पर वाम मोर्चे का दबदबा था, उनमें से कई को वापस अपने पाले में ले लिया है। कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर जैसे नगर निगम यूडीएफ के खाते में चले गए। ये सभी शहर लंबे समय से वामपंथी राजनीति के मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं। वहीं एलडीएफ के लिए राहत की बात यह रही कि कोझिकोड नगर निगम पर उसका कब्जा बरकरार रहा, जो अब उसका एकमात्र निगम गढ़ बचा है। सबसे ज्यादा चर्चा तिरुवनंतपुरम नगर निगम को लेकर रही, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह पहली बार है जब राज्य की राजधानी के निगम पर बीजेपी गठबंधन ने नियंत्रण हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को केरल की राजनीति में मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि तिरुवनंतपुरम की जनता ने विकास और बेहतर जीवन स्तर के लिए बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी।
वहीं नगर पालिकाओं के स्तर पर भी यूडीएफ का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। उसने 86 में से 54 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की और एर्नाकुलम, अलपुझा, मलप्पुरम, कोट्टायम तथा पालक्कड़ के कुछ हिस्सों जैसे शहरी और अर्ध शहरी जिलों में अपनी स्थिति मजबूत की है। इसके अलावा पतनमथिट्टा और इडुक्की जैसे इलाकों में भी यूडीएफ ने खोई हुई जमीन वापस हासिल की है। वहीं एलडीएफ ने हालांकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर की कुछ नगरपालिकाओं में अपना वर्चस्व बनाए रखा। दूसरी ओर एनडीए का कुल प्रभाव सीमित रहा, लेकिन पलक्कड़ नगरपालिका को बरकरार रखने और त्रिपुनिथुरा में जीत दर्ज करने को उसके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि उन्होंने 45 वर्षों के एलडीएफ शासन के खिलाफ बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक अन्य दल को परिवर्तन का प्रतीक मानते हुए समर्थन दे दिया। देखा जाए तो केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि वे राज्य की बदलती राजनीतिक मनोदशा को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। लंबे समय से वैचारिक रूप से वामपंथ और कांग्रेस के बीच झूलते रहे केरल में अब मतदाता स्थानीय शासन, शहरी विकास और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दों पर ज्यादा व्यवहारिक नजरिया अपनाते दिख रहे हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत यह बताती है कि केरल में भी राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव और शहरी मध्य वर्ग की आकांक्षाएं धीरे धीरे नई राजनीतिक जगह बना रही हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी राज्य में निर्णायक ताकत बन चुकी है, लेकिन इतना तय है कि वह अब हाशिए की पार्टी नहीं रही। बहरहाल एलडीएफ के लिए यह नतीजा चेतावनी की तरह है। स्थानीय स्तर पर कमजोर होती पकड़ भविष्य के विधानसभा चुनाव में भी चुनौती बन सकती है, यदि उसने शासन, विकास और जन सरोकारों को लेकर आत्ममंथन नहीं किया। कुल मिलाकर ये चुनाव केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की भूमिका रचते दिख रहे हैं, जहां परंपरागत ध्रुवीकरण के साथ साथ नए विकल्प और अपेक्षाएं भी उभर रही हैं। खैर, आइए आपको मिलवाते हैं राज्य की पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड आईपीएस आर श्रीलेखा से, जो कि बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुई हैं। From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me, and they were targeting me particularly. But somehow I am very happy to see that the people of Kerala, the people in my ward, have dismissed all those things as meaningless, and they have stood by me through thick and thin. So I'm very happy. Yeah, that is what, whatever I have done in the right and correct way, they have been attacking me. So I didn't want to create any problem for anybody. That has been, I've been correcting these steps because if at all I hurt anybody through my postings or anything, I've been correcting it immediately. But I know that I haven't violated any norms or any election code of conduct. I have come out victorious, and the people have stood with me, and the party has stood with me. Please ask that to the party leadership. Okay, I am right now a councillor. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।